Good afternoon, children. Today you will continue chapter metals and nonmetals. You are reading chemical properties of metals and nonmetals. You have already studied reaction of metals and nonmetals with oxygen. Today you will study reaction of metals and nonmetals with water. Okay? You know, children, magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. You take a piece of magnesium and clean it with sandpaper to remove a layer of oxide. Okay, children, magnesium is reactive metal, so when it is kept in air, it reacts with oxygen and a layer of magnesium oxide is formed on it. So firstly you take a magnesium piece and clean it with sandpaper to remove oxide layer. Now take that magnesium piece in a boiling tube. Okay, children, this is a boiling tube. You take this magnesium piece in this boiling tube. Okay, children, and fill this boiling tube with the help of stem. Now fill this boiling tube half with water and take another boiling tube and invert it over first boiling tube. Okay, now take a Bunsen burner and apply heat in this water. Now you will see, children, bubbles are formed in this boiling tube. These bubbles are gases. Now you will observe this gas is hydrogen gas. For that you can remove this inverted boiling tube and bring one burning splinter. Then you will listen a pop sound. It means when magnesium reacts with hot water, it forms magnesium hydroxide and hydrogen gas is evolved. It is the characteristic of hydrogen gas that when you bring a burning splinter or burning matchstick, it burns with a crackling sound, pop sound. Okay, children? तो बच्चों, आपने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. ठीक है, नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से नहीं, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. तो हम लोग मैग्नीशियम का पीस लेते हैं, उसको सैंड पेपर से साफ़ कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाए. अब मैग्नीशियम पीस को हम लोग इस बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं. ठीक है, इस बॉइलिंग ट्यूब को हम लोग फिट कर देते हैं स्टैंड से. बॉइलिंग ट्यूब में मैग्नीशियम पीस रखने के बाद इस ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग हाफ बॉइलिंग ट्यूब वाटर डाल देते हैं. अब एक दूसरा बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं और इस फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर हम लोग इसको रख देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, पलट देते हैं. ठीक है, इसे भी हम लोग स्टैंड से फिट कर देते हैं. अब जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं इस पहले वाले बॉइलिंग ट्यूब में, तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बबल्स देखा जाता है इस ट्यूब में. अब हम लोग दूसरे टेस्ट ट्यूब, जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, उसको हटाते हैं और उसके पास एक जलता हुआ स्प्लिंटर लाते हैं, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो गैस जो रिलीज होता है वो हाइड्रोजन गैस है. ठीक है बच्चों, तो आप देखें, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, बट सम मेटल्स रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर vigorously, like sodium and potassium. Sodium and potassium reacts with water vigorously and produces so much heat that this heat can cause explosion in the hydrogen gas, or hydrogen gas can catch fire due to the heat released by the reaction of sodium or potassium with water. ठीक है बच्चों, सोडियम और पोटासियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये इतना हीट एनर्जी रिलीज करता है कि उस हीट से जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो आग पकड़ लेता है. ठीक है बच्चों, तो सोडियम और पोटासियम वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है. हम लोगों को पानी को गर्म नहीं करना पड़ता है, ये नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट करता है और बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है रिएक्शन में वो आग पकड़ लेता है. तो you have seen children, sodium and potassium reacts
vigorously with water and produces so much heat that this heat can catch fire in the hydrogen gas. Okay children, now you will see children, zinc reacts with boiling water and iron reacts with steam, and gold and silver और प्लैटिनम दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ओके चिल्ड्रन, तो आपने देखा कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटासियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, और जिंक वो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, और आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है, और गोल्ड और प्लैटिनम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है. इसका मतलब मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है और गोल्ड और प्लैटिनम लिस्ट रिएक्टिव है. ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स. अब एसिड के रिएक्शन में आप देखिएगा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. इसके लिए आप सबसे पहले एक आयरन का नेल लीजिए, लोहे का कांटी, और उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आयरन भी रिएक्टिव है और उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड. ओके, रस्ट. तो पहले सबसे पहले आप आयरन का पीस काटी लीजिए, आयरन नेल, सैंड पेपर से उसको क्लीन कर दीजिए ताकि आपको सिर्फ आयरन रहे. अब एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें आप लोग टेस्ट ट्यूब को इसी तरह से आप फिट कर दीजिए स्टैंड में, और इस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाल दीजिए, और इस आयरन नेल में अब आप टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए. ठीक है बच्चों, और दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसको भी स्टैंड से लगाकर पहले वाले टेस्ट ट्यूब के ऊपर पलट दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, पलट दीजिए. अब कुछ देर के बाद आपको बबल्स दिखाई देगा इस टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, अब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जो आप सेकंड टेस्ट ट्यूब जो उसके ऊपर पलटे हैं उसको हटाइए और वहाँ पर बर्निंग स्प्लिंटर लाइए, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा, क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वो बबल्स कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस. तो आप देख रहे हैं ना कि आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करता है तो FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ओके चिल्ड्रन, यू हैव सीन that metals react with acid to form salt and hydrogen gas. Activity is given, you take iron nail and clean it with sandpaper and put it in the test tube as shown in the diagram. Okay, now take another test tube. Firstly you add dilute hydrochloric acid in the test tube. Now take another test tube and invert it over first test tube like this diagram shown in the book. Okay children, this is first test tube. Put iron nail in this test tube and add dilute hydrochloric acid in it. Now take another test tube and invert it over this first test tube and you will see bubbles in the test tube. Now these bubbles are gas, hydrogen gas. Now remove this inverted test tube and bring one burning splinter. You will listen pop sound. It means the gas released is hydrogen gas. So when iron reacts with dilute hydrochloric acid, it forms iron chloride and hydrogen gas. Reaction is like it, Fe iron plus HCl, it will form FeCl2 plus H2. You can balance the equation. Okay children, now if you take magnesium piece or if you take zinc granule, it will not react with dilute hydrochloric acid. It will react with sulfuric acid. Okay, zinc will react with sulfuric acid and will form zinc sulfate and hydrogen gas will be released. Zn plus H2SO4, it will form ZnSO4, zinc sulfate plus hydrogen gas. Similarly, magnesium will also react with sulfuric acid, Mg plus H2SO4, it will form MgSO4, magnesium sulfate plus hydrogen. Okay children, now you will see these are displacement reactions. We have already studied in class 7th. Displacement reaction I will discuss again.
Okay, later. Now you have seen, children, that most metals react with dilute acids to form hydrogen gas and salt. You have seen activity, you have studied that iron reacts with dilute hydrochloric acid and it forms iron chloride and hydrogen. This activity shows that most of the metals react with dilute hydrochloric acid and they form salt and hydrogen gas. Okay. Now you will see, children, some metals do not react with dilute hydrochloric acid like copper and lead. कॉपर और लीड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. कॉपर और लीड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है. जैसे आपने पढ़ा, आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट. वैसे इसमें नहीं होता है. कॉपर और लीड जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस भी नहीं रिलीज करता है. ठीक है बच्चों. और अगर आप देखते हैं गोल्ड और प्लैटिनम तो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो ये आप समझ गए. अब हम लोग नॉन मेटल्स की बात देखें तो नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फ़र और फास्फोरस वो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं. ठीक है बच्चों. तो यू हैव सीन दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट सम नॉन मेटल्स like sulfur and phosphorus they react with hot concentrated sulfuric acid or nitric acid but they do not release hydrogen gas. So this is about the reaction of metals and non metals with acid. ठीक है बच्चों. तो आपने पढ़ा कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. मैग्नीशियम और जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. उसी तरह से कॉपर और लीड जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस भी नहीं रिलीज करेगा. ठीक है. नॉन मेटल्स जनरली वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन सल्फ़र और फास्फोरस वो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है. तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड. अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एल्कलीज. आपको पता है व्हाट इज़ एल्कली? वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज. ओके. ऐसा बेस जो वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए उसको हम लोग एल्कली कहते हैं. जैसे NaOH, KOH ये सब एल्कली है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एल्कलीज. ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज बट सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक दे कैन रिएक्ट विथ alkali. Alkali means they can react with sodium hydroxide or potassium hydroxide and they form salt and hydrogen gas. ठीक है बच्चों. तो एल्कली के साथ रिएक्शन ज़्यादातर मेटल्स नहीं करते हैं. कुछ मेटल्स रिएक्ट होते हैं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक और रिएक्शन के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. तो इस तरह से आपने देखा बच्चों इतने सारे रिएक्शन में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड या सारा देखने के बाद आप क्या देखें बच्चों? कुछ मेटल्स तो काफ़ी रिएक्टिव हैं और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव हैं. जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर आपने देखा तो देखा सोडियम और पोटासियम वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है नॉर्मल वाटर के साथ. मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, जिंक बॉइलिंग वाटर के साथ और आयरन स्टीम के साथ. और गोल्ड और प्लैटिनम नहीं रिएक्ट करता है. इससे आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चों कि कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव हैं. सोडियम और पोटासियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बहुत रिएक्टिव हैं.
मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और आप जब आयरन को देखते हैं तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो लेस रिएक्टिव है। और जब आप सिल्वर और गोल्ड को देखते हैं तो वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मतलब ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है, प्लैटिनम लिस्ट रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये एलिमेंट में एक टेंडेंसी होता है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है। इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स में या एलिमेंट्स में एक टेंडेंसी होता है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट कर लेता है और कंपाउंड बना देता है। आपने पढ़ा है ना कि सम मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है, और अर्थ के क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में होता है, ठीक है बच्चों। जैसे सोडियम, पोटासियम, ये जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड बना देता है। तो जिस मेटल में ये ज़्यादा टेंडेंसी होता है उसको कहते हैं ज़्यादा रिएक्टिव, जिसमें ये कम टेंडेंसी होता है उसको कहते हैं लेस रिएक्टिव। तो इस तरह से हम लोग मेटल्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार। जो कम रिएक्टिव है उसको नीचे रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर रखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हम लोग उसको अरेंज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके चिल्ड्रन, एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड। This tendency of the elements or the metals is called reactivity, and all the metals are not similar reactive. Some metals have more tendency to react with other substances to form compound, and some metals have less tendency to react with other substance to form compound. Okay, so on the basis of their tendency to react with other substance, these metals have been arranged in the decreasing order of their reactivity, that is called reactivity series. For example, potassium is the most reactive metal, so it is kept at the top in the reactivity series, and platinum is the least reactive metal, so it is kept at the bottom of the reactivity series. Okay children, so reactivity series is clear to you. Reactivity series means metals have the tendency to combine with other substance to form compound, and this tendency is called reactivity, and metals have been arranged on the basis of their decreasing order of their reactivity, that is called reactivity series. Reactivity series is given in the tabular form in your book, page number 47. All of you will memorize it. Like first one is potassium, sodium, calcium, magnesium. In this way it is given: aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, mercury, silver, gold, platinum. So you have to memorize. Okay, it is very important. Now next topic is displacement reaction. Just now you have seen children, you have studied reaction of metals with acid, in which you have seen that iron displaces hydrogen from hydrochloric acid. Fe plus 2 HCl, you have read FeCl2 plus H2. Okay children, here what do you see? That iron is displacing hydrogen from hydrochloric acid. This is displacement reaction. Similarly, you have studied zinc Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2. Again, zinc ZnSO4, Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2. You have studied reaction of metals with acid. Here what you observe children? Zinc is more reactive than hydrogen, so it is displacing hydrogen from hydrogen sulfate. Okay, so it is forming ZnSO4 plus H2. Displacement means to replace, to remove. Okay, for example, you have seen children that more reactive metal can displace lesser reactive metal from the aqueous solution of its salt.
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करेगा, अगर कम रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच more reactive metal, highly reactive metal displaces lesser reactive metal from its aqueous solution of salt is called displacement reaction। अब एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, आप एक बीकर लीजिए और उसमें वाटर ले लीजिए 250 ml और वाटर ले लीजिए और बीकर में पानी लेने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का पाउडर आता है, उसमें डाल के स्टीयर कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है बच्चों। अब एक आप मैग्नीशियम रिबन, तो आपको ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा बीकर में, अब आप उसमें एक मैग्नीशियम रिबन डिप कर दीजिए। ये देखिए बीकर है, बीकर में हम लोग 250 ml वाटर लेते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं, ब्लू सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लेकर उसमें डिप कर देते हैं, डाल देते हैं बीकर में, तो देखते हैं ये ब्लू कलर जो था वो कलरलेस हो गया। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से। Mg विल रिएक्ट विथ CuSO4 और मैग्नीशियम, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए तो आप देखिएगा कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और MgSO4 प्लस Cu बना देता है। मैग्नीशियम के ऊपर एक ब्राउन लेयर हो जाता है बच्चों, वो कॉपर का लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मीन्स अपनी जगह से हटा देता है और बन जाता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ओके चिल्ड्रन, तो ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आप देखिएगा कि ब्राउन लेयर का कोटिंग हो जाता है और ये ब्राउन लेयर कहाँ से आ गया बच्चों? तो ये कॉपर सल्फेट जो था वो ब्रेक किया और वो कॉपर को अलग कर दिया और मैग्नीशियम के ऊपर वो कॉपर का लेयर आ गया जिसके चलते वो ब्राउन लेयर बन गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके चिल्ड्रन, you will take a beaker, fill 250 ml water in this beaker and add copper sulfate. Copper sulfate is of blue color powder and stir it. Okay, you will get a blue colored solution in the beaker. Now dip one magnesium ribbon in it. Then you will see after some time the blue colored solution will become colorless, and on the magnesium ribbon you will observe a coating of brown layer. This coating is of copper. Okay, so what you observe children, when magnesium reacts with copper sulfate Mg plus CuSO4, it forms magnesium sulfate MgSO4 plus Cu. So in this reaction magnesium displaces copper from copper sulfate solution because magnesium is more reactive than copper. So you can say that displacement reaction is a reaction in which more reactive metal displaces lesser reactive metal from its aqueous solution of salt. This is called displacement reaction. Now children, now can you say if a solution of silver nitrate and dipping a copper wire in it, what will happen? Repeat the activity by taking a solution of silver nitrate. Silver nitrate means AgNO3, and dip a copper wire in it. When you dip a copper wire in it, what will happen children? It is your homework. Tomorrow I will ask you. Okay, will silver nitrate and copper wire take reaction or not? What will be formed? Will displacement reaction take place or not? Now you have to think over it, and tomorrow I will raise the question from this part. Okay children, thank you.